वेल गुड आफ्टरनून पीपल एवरीवन, वेलकम बैक। और आज का ये लेक्चर लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। लास्ट टाइम क्या क्या किया था जस्ट एक ब्रशअप मार लेते हैं। लास्ट टाइम वी डेल्ट विथ थ्री टॉपिक्स मेनली। फर्स्ट टॉपिक वाज द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस और क्यू फैक्टर। उसमें हमने देखा था ये एक मस्त कर्व बनाया था हमने। दिस वाज अ ग्राफ ऑफ करंट वर्सेस ओमेगा, and we saw that at omega 0 at resonance the current is maximum. It is called Im max. So at resonance, I'm sure you remember xc minus xl is 0, so current is max and Im max will be Vm by Z, और Z कितना होता है? R होता है। So Im max is Vm by R. Now हमने एक पॉइंट, और यहां पे पावर भी मैक्स होता। फिर हमने एक करंट लिया विच वॉज कॉल्ड आई एम मैक्स बाय रूट टू, एंड हमने ये देखा कि दिस करंट अकर्स एट 2 पॉइंट्स। दीज वर द टू फ्रीक्वेंसीज, दिस वॉज ओमेगा 1, दिस वॉज ओमेगा 2। ओमेगा 0 से थोड़ा ज्यादा ओमेगा 1 है, ओमेगा 0 से थोड़ा कम ओमेगा 2 है। ये रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज वो है विच इज कॉल्ड ट्वाइस डेल्टा ओमेगा, or which is called bandwidth or half power bandwidth, half power bandwidth। and हमने ये देखा था कि twice delta omega is R by L। okay, so twice delta omega, this is that range of frequencies within which power is half or more, हाफ या उससे ज्यादा पावर मिल जाता है इस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज में। मतलब सर्किट को इस रेंज में चलाओ तो अच्छी सर्किट चलेगी, हाफ पावर से थोड़ा ज्यादा दे पाएगी वो। सो हाफ पावर बैंडविड्थ इज R by L, एंड देन वी डिफाइंड Q फैक्टर। Q फैक्टर वाज द रेशियो ऑफ ओमेगा 0 बाय ट्वाइस डेल्टा ओमेगा। ओमेगा 0 अपना रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, एंड ट्वाइस डेल्टा ओमेगा इज हाफ पावर बैंडविड्थ और सिंपली बैंडविड्थ। ट्वाइस डेल्टा ओमेगा की जगह R by L डालने से दिस बिकेम ओमेगा 0 L by R। दिस वाज अ वेरी लवली इक्वेशन। फिर हमने ओमेगा की जीरो की जगह 1 by रूट ऑफ LC डाल दिया, तो दिस बिकम Q is 1 by R रूट ऑफ L by C। एंड इस पूरी चीज का फंडा ये था कि कोई भी सर्किट अच्छी है तो उसका Q फैक्टर बड़ा होगा। Q फैक्टर विल बी हाई इफ द सर्किट इज गुड, इट हैज गुड सिलेक्टिविटी, गुड ट्यूनिंग। तो in order to have more Q, 2 delta omega has to be less, and if 2 delta omega has to be less, then R by L ये रेशियो कम होना चाहिए। इन शॉर्ट R कम हो वो ज्यादा अच्छा होता है, और राइट, तो रेजिस्टेंस कम हो, यहां से भी दिखाई देगा जितना कम R होगा उतना ज्यादा Q होगा, and that is how the entire thing runs. So if you want a circuit to have good selectivity, good tuning, then it has to have a high value of this Q factor. Okay, this was Q factor। फिर आगे बढ़े, पावर देखा, और पावर में दो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हमारे हाथ लगे। पहला वाला था P, पावर P एवरेज पावर है भाई, Vm Im by 2 cos phi, एंड दूसरा था P is Vrms Irms cos phi। ये Vm Im Vrms Irms हम जानते हैं, cos phi को नहीं पहचानते हैं। cos phi हमारे लिए पहली बार आया था, हमने उसका स्वागत किया। cos phi का नाम है पावर फैक्टर। ओके, सो cos phi was called पावर फैक्टर, एंड उसकी वैल्यू cos phi is R by Z, and Z you already know is root of R square plus xc minus xl the whole square. So this was पावर फैक्टर। एक बात फिर से याद दिला दूं, तीनों में R, L और C में only R consumes power. L and C do not consume any power over one whole cycle. तो जो current flow होता है that does not consume any power, that is called wattless current. And finally at resonance, there is an important factor that you need to know. Resonance पे Z is equal to R, and as a result cos phi has to be equal to 1. तो resonance पे power factor is 1. Finally, we dealt with the idea of a transformer, not the one that you watch in movies about, but something that can increase or decrease the value of AC voltage is called a transformer, and it works on the principle of electromagnetic induction.
primarily mutual induction, specifically mutual induction. तो हमने ये देखा और हमने इंपॉर्टेंट वाला ये फंडा किया कि Vs by Vp, voltage in the secondary over voltage in primary, is equal to Ns by Np. Ns is the number of turns in the secondary, Np is the number of turns in the primary. For an ideal transformer, अब ideal transformer ऐसा होता है जिसमें input power is equal to output power, Pi is Po, so Vp Ip, voltage in the primary into current in the primary, is Vs Is, voltage in the secondary into current in the secondary. और इसको इसके साथ मिला के we finally found the most important equation for voltage and current and all. It was Vs by Vp is Ip by Is is Ns by Np is equal to R. I hope you remember this equation. R is called transformer ratio. You remember R is Ns by Np. It is the ratio of the number of turns in the secondary to the number of turns in the primary. And अगर तुम्हारा R greater than 1 है, if R is greater than 1, it means Ns is greater than Np. It means Vs is greater than Vp. Then it is a step up transformer. Output voltage greater than input. This is a step up transformer. And if R is less than 1, Vs is less than Vp, output voltage is lesser, it is a step down transformer. But एक बात याद रखें, for real life transformer, real life transformer में output power is always less than input power. हमेशा याद रखना, चाहे वो step up हो या step down. I am still repeating the fact, चाहे वो step up हो या step down, output power is always less than input power, because कुछ एक टाइप के losses होते हैं. पहला होता है जूल हीट लॉस, जो करंट पासिंग थ्रू अ रेजिस्टेंस वायर वगैरह से पास होता है, वो होता है, वो तो होना ही है. दूसरा है एडी करंट लॉस, ड्यू टू द कंटिन्यूअस मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग, फ्लक्स चेंजिंग, छोटे छोटे करंट्स पैदा हो जाते हैं. एंड एडी करंट लॉस को मिनिमाइज करने के लिए वी यूज इंसुलेटेड शीट्स ऑफ मेटल. एंड फाइनली वी हैव हिस्टेरेसिस लॉस ड्यू टू कंटिन्यूअस मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन. वो हिस्टेरेसिस कर्व चलता जाता है, एंड उसको कम करने के लिए वी यूज अ मटीरियल दैट हैज गॉट अ नैरो हिस्टेरेसिस कर्व, जिसकी वजह से एरिया कम होगा, हीट एनर्जी लॉस भी कम होगी. सो दिस वाज व्हाट वी डिड लास्ट टाइम, एंड व्हिच ब्रिंग्स अस टू आवर लास्ट पड़ाव, आखिरी पड़ाव है ये. एंड अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई गाइस, दिस इज फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस ओनली. बट ऐसा कुछ नहीं होता यार क्वालिटेटिव एनालिसिस. हम इसको देख लेंगे, अच्छी तरह देखेंगे, क्या क्या कहना चाहता है वो देखेंगे, क्वालिटी भी क्वांटिटी भी सब देखेंगे. सो दिस इज आवर लास्ट आइडिया विच इज कॉल्ड एलसी ऑसिलेशंस. अच्छा, शुरू करते हैं. बिफोर आई एक्चुअली स्टार्ट, देयर इज समथिंग आई नीड टू शेयर विथ यू. ओके, जस्ट अ सिचुएशन. मेरे पास एक कैपेसिटर है एंड दिस कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड एज यू कैन सी. दोनों प्लेट्स पे मस्त चार्ज है, एनर्जी स्टोर्ड है इसमें. नाउ व्हेन आई कनेक्ट दिस कैपेसिटर टू अ रेजिस्टर, डू यू अग्री चार्ज करंट बन के फ्लो होना शुरू हो जाएगा. एंड व्हेन दिस करंट फ्लोज थ्रू द रेजिस्टर, all the energy that was stored in the capacitor will get dissipated, will be lost in the form of heat. तो जो भी एनर्जी यहां पे कैपेसिटर में होगी वो सारी एनर्जी हीट बन के निकल जाएगी. यू कैन ऑल्सो डू दिस. एक कैपेसिटर को चार्ज करो, फिर उसके दोनों प्रोंग्स इकट्ठा कर दो, तो रेजिस्टेंस है वायर का, तो रेजिस्टर जैसे हो गया, बुक करके भड़का होगा, सब हीट एनर्जी बन के निकल जाएगा. सो दैट हीट इज लॉस्ट, इट्स गॉन, यू कैन ब्रिंग इट बैक. सो व्हेन अ चार्ज्ड कैपेसिटर, आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दिस, शो यू दिस, दैट ये जो एनर्जी इसमें स्टोर थी वो सब इसमें करंट बन के फ्लो हुई, चार्ज करंट बन के फ्लो हुआ और सारी हीट एनर्जी निकल गई. इट्स गॉन, यू आर नॉट गोइंग टू गेट इट बैक. व्हेन अ चार्ज कैपेसिटर is connected to a resistor, all the stored energy is lost in the form of heat.
हीट एनर्जी बनके ये सारी एनर्जी लॉस्ट हो गई है। ऑलराइट, एंड चार्ज करंट बनके बह गया और दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, खत्म हो गई बात। ये एनर्जी गई आपकी, जो भी आपने वर्क किया था, जो भी एनर्जी स्टोर करी, इज गॉन। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं एक चार्ज कैपेसिटर को किसी इंडक्टर के साथ कनेक्ट करता हूं, मैं आइडियल केस अज्यूम कर रहा हूं जिसमें इंडक्टर डज नॉट हैव एनी रेजिस्टेंस, सो इफ आई कनेक्ट इट विद एन इंडक्टर, क्या आलम होता है, ये एक बड़ा ही अलग चीज है। तो आओ देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। सो आई हैव दिस कैपेसिटर हियर, fully charged of course, capacitor C, let us call the charge QM, पूरी तरह चार्ज है, and I am connecting it with an inductor, uncharged inductor, कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं है इंडक्टर में, और मैं इसको कनेक्ट करता हूं। You will be surprised at what happens. So just keep looking. Suppose यहां पे कोई की है और फिलहाल की खुली हुई है। Alright, so at time t equal to 0, let me put the basic facts first. Capacitor is fully charged. Let us say charge is Qm. The inductor is uncharged. No energy is flowing, no energy is stored in the inductor. Full energy is stored in the capacitor. Energy in capacitor, we'll call it UE. You know, energy of a capacitor is given as Q square by 2C. तो कितनी एनर्जी स्टोर होगी? QM square by 2C. Current is 0. In inductor is 0. So energy in the inductor, we'll call it UB, magnetic energy is 0. अब मैं की चालू करने वाला, ladies and gentlemen, I'm sure you're looking. Now the key is closed. जब की क्लोज हुई, कैन यू सी नाउ द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द इंडक्टर नाउ, एंड दिस प्लेट हियर. सो दिस चार्ज starts flowing in the form of current into the inductor. Can you see this? ये चार्ज करंट बनके इंडक्टर में फ्लो होने लगा, एंड क्योंकि अब करंट इंडक्टर में फ्लो होने लगा है, चार्ज इस पे कम होने लगा, चार्ज कम होने लगा तो एनर्जी विच इज क्यू स्क्वायर बाय 2c भी कम होने लगी, इसमें करंट फ्लो होने लगा. यू नो, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर इज हाफ Li square. So due to current, the energy in the inductor goes on increasing. You remember, inductor can also store energy. So when key is closed, the charge from capacitor flows as current into the inductor. Okay buddy, so charge on capacitor goes on decreasing, Q goes on decreasing, energy UE which is Q square by 2C, चार्ज घटने लगा तो एनर्जी भी घटने लगी महाराज. उसी तरह ऑन इंडक्टर करंट बढ़ने लगा है, एंड UB which is half Li square is also increasing. आपने देखा, पहले कैपेसिटर में एनर्जी फुल थी, अब धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी एनर्जी इंडक्टर में जाने लगी और इंडक्टर में स्टोर होने लगी है. एक पॉइंट ऐसा आएगा, एट वन पॉइंट चार्ज ऑन कैपेसिटर विल बिकम 0, एंड अगर चार्ज ऑन कैपेसिटर 0 हो गया, व्हाट विल बी द एनर्जी ऑन द कैपेसिटर? 0. करंट इन द इंडक्टर बिकम्स मैक्सिमम, so what will be the energy in the inductor? Maximum. Do you agree? कैपेसिटर पे चार्ज 0 हो गया तो एनर्जी भी 0 हो गई, इंडक्टर में करंट मैक्सिमम हो गया तो एनर्जी भी मैक्सिमम हो गई. कैपेसिटर की सारी एनर्जी अब इंडक्टर में स्टोर हो गई है. यू अंडरस्टैंड? एट वन पॉइंट चार्ज on capacitor is 0, so UE which is Q square by 2C is also 0. Oh my god, sorry,
current in inductor is maximum. So energy UB, which is half Li square, is also maximum. और ये करंट को मैं नाम देता हूं IM, मैक्स करंट. तो कैपेसिटर अब बेचारा खाली हो गया, इंडक्टर भर गया, इंडक्टर की एनर्जी मैक्स हो गई, करंट अब मैक्स फ्लो होने लगा, सारी एनर्जी स्टोर हो गई इंडक्टर में, कैपेसिटर हो गया जीरो. पर याद रखना, इंडक्टर वादा निभाएगा. अब इंडक्टर में से चार्ज फिर से करंट फिर से इधर फ्लो होने लगेगा, और अब ये पॉजिटिव होने लगेगा, ये नेगेटिव होने लगेगा. एनर्जी फिर से अब कैपेसिटर में स्टोर होने लगेगी. फाइनली कुछ टाइम बाद इंडक्टर में एनर्जी जीरो हो जाएगी, कैपेसिटर में एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी. जो कैपेसिटर से शुरू हुआ था कारवां, वो इंडक्टर में गया, इंडक्टर में से फिर से एनर्जी कैपेसिटर में आई. सो एनर्जी एंड चार्ज कीप गोइंग अराउंड बोथ दीज डिवाइसेस. आपने देखा लास्ट केस में कैपेसिटर को रजिस्टर के साथ कनेक्ट किया था, एनर्जी लॉस्ट हो गई थी. इस बार एनर्जी लॉस्ट नहीं हो रही है, एनर्जी सर्किट में ही घूम रही है. कभी ये स्टोर करता है, कभी ये स्टोर करता है, कभी आधा आधा कर लेते हैं. सो दिस सर्किट इज स्टोरिंग एनर्जी, एंड एज अ रिजल्ट एन एलसी सर्किट इज ऑल्सो कॉल्ड अ टैंक सर्किट. यू नो, टंकी होती है घर में, पानी स्टोर करते हैं, वैसे ही एनर्जी स्टोर करने वाली सर्किट है ये. Such a circuit is called a tank circuit. Let me write that much here. You want to have a look? You can have a look. तो सर इसका यूज क्या होता है? बेटा पिक्चर अभी चालू है, देखता तो जा, मजा आएगा. बरोबर, ये देख लिया. हाँ, सर इसमें थोड़ा भी हीट लॉस तो नहीं जाएगा एनर्जी? well, to be very precise, we are taking the ideal case scenario. Ideal case scenario मतलब ये सारे वायर्स जो है वो जीरो रेजिस्टेंस के हैं, इंडक्टर में भी जीरो रेजिस्टेंस है. इन शॉर्ट कहीं भी रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो हमने हीट लॉस को पकड़ा ही नहीं है. आइडियल केस सिनारियो. हाँ, मैं इसको एक, अगर मैं रियलिस्टिक सिनारियो बताऊं तो थोड़ी थोड़ी एनर्जी हीट में कम होती जाएगी ही. आ रहा हूं थोड़ी देर में, उसमें भी आ रहा हूं. बराबर, पर पहले आइडियल केस सिनारियो तो समझ लें कि क्या कहना चाहता है. थस लेट मी कंक्लूड. Thus, energy keeps oscillating as also, and it keeps oscillating between L and C. Current and charge also keep oscillating. So that is why this is called an LC oscillator circuit. As this LC circuit stores energy, it is also called a tank circuit. Tank. Okay. एंड ये जो भी मैंने लिखा है, उन्होंने एक बहुत अच्छा स्कीमेटिक डायग्राम बनाया है आपके लिए. इफ यू वांट टू चेक, यू कैन चेक इट. मैं वो डायग्राम फिर से बना रहा हूं आपके लिए. आई एक्सप्लेन ऑल द फैक्टर्स आल्सो. आई एम लुकिंग एट द डायग्राम ऑन पेज नंबर, लेट मी टेल यू द पेज नंबर 256, 256. कैन यू सी 256? 256 पे मस्त सिचुएशन है. आप देखें, मैं आपके लिए डायग्राम बनाऊंगा मस्त, और एक्सप्लेन भी करूंगा हर पॉइंट को. ओके, आई एम टेकिंग दिस ऑफ नाउ. This is the schematic diagram for LC oscillations. Let me make it and let me explain each point. फिर हम एक डेरिवेशन कर लेंगे छोटा सा, भले जरूरत नहीं है पर फिर भी कर लेते यार. अगर कोई टॉपिक को पकड़ रहे हैं तो उसको अच्छी तरह पकड़ना अत्यंत आवश्यक है. नहीं तो क्या पकड़ा है, क्यों पकड़ा? अगर अच्छी तरह पकड़ना ही नहीं था तो टच करने की जरूरत ही नहीं है जी. टच करो तो अच्छा करो, वरना मत करो. ओके, so stay with me. This is a schematic diagram for LC oscillations. हमारी ब्लैक ब्लू पेन की परिस्थिति गंभीर लग रही है. लेट मी सी. अच्छा, सबसे पहले A at time t equal to 0. ये मेरा सिचुएशन है at time t equal to 0. Let me write it in blue and let me draw it in black.
t is equal to 0 पे, as I said, capacitor fully charged, inductor uncharged, alright. तो कैपेसिटर पे चार्ज है, आई थिंक ऊपर वाली प्लेट पे पॉजिटिव है ना, नीचे वाली पे नेगेटिव है. सो फुल्ली चार्ज कैपेसिटर, कितना चार्ज है QM, एंड कितनी एनर्जी स्टोर है UE इज QM स्क्वायर बाय 2C. इसमें कितनी स्टोर्ड है एनर्जी? 0. ओके, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिखाया. आई एम श्योर यू रिमेंबर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. कैन यू सी, मैंने 4 एरो बनाए हैं जस्ट टू शो कि फुल इलेक्ट्रिक फील्ड है. अब यहां से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा जब की बंद होगी, एंड एट टाइम t इक्वल टू, लेट अस कॉल इट t/8, 1/8 ऑफ द साइकिल. क्या परिस्थिति होगी दिखाऊं मैं आपको. तो उसमें मैं यहां ये अज्यूम कर रहा हूं कि करंट स्टार्टेड फ्लोइंग इनटू द सर्किट, एंड एज अ रिजल्ट इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप हुआ. यू रिमेंबर मैग्नेटिक फील्ड लाइन, एंड इस पे अब चार्ज काफी कम हो गया. मैंने अब 2 ही दिखाए, 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव. पहले 4 थे, 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव, जस्ट टू शो कि अब चार्ज कम हो चुका है. एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट t/8 UE डैश बिकम्स आधा, जो ओरिजिनल था उसका आधा हो गया, और बाकी का आधा किसमें आ गया? इसमें. UB डैश इज ऑल्सो UE/2. पहले इसमें सपोज 10 जूल एनर्जी थी, अब t/8 पे चार्ज कम होने की वजह से इसमें एनर्जी 5 जूल रही, बाकी की 5 जूल किसमें ट्रांसफर हो गई? इसमें. और अब एक और t/8 के बाद, दिस इज t/4. अब क्या परिस्थिति होगी? ये कैपेसिटर खाली हो जाएगा जी, ये कैपेसिटर खाली हो जाएगा और बाजू में इंडक्टर फुल हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा. अच्छा बाय बाय, एनर्जी खत्म हो गई भाई. इसमें करंट मैक्स होने लगा है, और यू नो आप चाहो तो ज्यादा लाइन बना लो जस्ट टू इंडिकेट कि इसका मैग्नेटिक फील्ड बड़ा हो चुका है, काफी बड़ा हो गया, बेहतर हो गया. इसमें 0 हो गया चार्ज, कोई चार्ज ही कोई नहीं है, तो इसमें UE डैश अब क्या हो जाएगा? 0. एंड UB अब क्या हो जाएगा श्रीमान? एनीबॉडी? हाफ L IM स्क्वायर. चार्ज ऑन द कैपेसिटर नाउ इज 0. पहले करंट वाज 0, अब चार्ज हो गया 0. अब एक और t/8 नीचे आ जाना पड़ जाएगा जी, जा ध्यान से. t इज इक्वल टू 3t/8. दिस वॉज 2t/8, और 3t/8 पे अब देखना जरा, आपको इतना नीचे नजर आ रहा है ना बरोबर? पाइयों नजर आ रहा है ना? अब इसमें से चार्ज इसमें फ्लो होना शुरू हो जाएगा, करंट ऐसा चलना शुरू हो जाएगा. ओके, एंड अब ये होना चलाएगा पॉजिटिव और ये होता जाएगा नेगेटिव. आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा बदल गई. पहले ये प्लेट, ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव थी, नीचे वाली नेगेटिव थी. अब नीचे वाली पॉजिटिव होने लगी, ऊपर वाली नेगेटिव होने लगी. इसमें से मैग्नेटिक फील्ड फिर से कम होने लगा, फिर से 2 डंडी. एंड UB dash is now UB/2 and UE dash is also UB/2. तो जो 10 जूल पहले यहां स्टोर हुई थी, अब फिर से इसमें 5 जूल हो गया, इसमें भी 5 जूल हो गया. एंड एट 1 more t/8, so t is equal to t/2 के बाद एनीबॉडी कैन टेल मी क्या परिस्थिति होगी? एनीबॉडी? कोई भी बड़ी चलेगा. है बड़ी? नो बड़ी बढ़ेगा मतलब मैक्स नहीं हो जाएगा सर जी? वाह. और इसमें करंट क्या हो जाएगा? 0. पर अब परिस्थिति उल्टी हो गई है. पहले ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, अब नीचे वाला पॉजिटिव है, ऊपर वाला नेगेटिव है. एंड भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाए का पड़ी. UE डैश is QM square by 2C
एंड UB इज 0। आओ जो इसमें चार्ज कितना हो गया QM, करंट कितना हो गया 0। फिर से आधी साइकिल के बाद सिचुएशन वही रिपीट हुई, बट पोलैरिटी चेंज हो गई। यू सॉ पोलैरिटी चेंज हो गई। पहले ऊपर वाला प्लेट पॉजिटिव था, नीचे वाला नेगेटिव था, अब नीचे वाला पॉजिटिव है, ऊपर वाला नेगेटिव है। अच्छा, कैन एनीवन टेल मी, अगर इसके बाद में एक और T/8 बना था, लेट अस से 5T/8, क्या होता, कहां से करंट निकलता? नीचे वाली प्लेट से महाराज। अब करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा ना, अब करंट यह फ्लो होने लगेगा, फिर से ये कम होता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। वेरी गुड, जस्ट लुक एट दिस स्कीमेटिक प्लीज। LC ऑसिलेशन का डायग्राम बना के थोड़ा डेरिवेशन देख लेते हैं। स्कीमेटिक तो देख लिया, LC ऑसिलेशन। ये तुम्हारा कैपेसिटर, ये इंडक्टर, एंड ये प्लेट पॉजिटिव है, ये प्लेट नेगेटिव है, करंट इस तरह फ्लो करता है। सो इफ आई अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ, KVL टू लूप, let us call this loop A B C D. So to loop A B C D A, what do I get? बुरे से अच्छा is अच्छा, so Q by C, voltage across capacitor is Q by C in the direction of current, so minus L di by dt is equal to 0. This is going to be my first equation. L di by dt is the equation for potential difference across the inductor, and Q by C is the equation for potential difference across the capacitor. Now everybody knows current I is dq by dt, पर minus q minus negative sign as चार्ज घटता जा रहा है, करंट बढ़ता जा रहा है। एक क्वांटिटी घटती है, दूसरी बढ़ती है, as q decreases and I increases with time। तो अभी I की जगह पे माइनस dq by dt लगावांगे। ये पेन की फटी पड़ी है अभी। सो Q by C minus L into D by dt of what is I minus dQ by dt is equal to 0। तो क्या मिला अपने को? तो Q by C plus L d square Q by dt square is equal to 0। Let's divide by L, so I get d square Q by dt square plus Q by LC is equal to 0। If you do not suffer from something called Gajni syndrome, then you can compare equation 2 with d square x by dt square plus omega 0 square x is equal to 0, which is the equation for simple harmonic motion, SHM। याद आ रही बचपन की बात है? सो कंपेयर करोगे, देखो एक्स एक्स क्यू क्यू, तो डू यू अग्री ओमेगा 0 स्क्वायर विल बी 1 बाय रूट ऑफ 1 बाय LC। सो वही इक्वेशन मिला जो बहुत टाइम पहले हमने देखा था, ओमेगा 0 स्क्वायर इज 1 बाय LC। सो ओमेगा 0 कितना होगा? 1 बाय रूट ऑफ LC। बहुत ही बढ़िया, हमने ये इक्वेशन पहले भी डिराइव किया हुआ है रेजोनेंस के टाइम पे। सो द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सच ऑसिलेशंस ओमेगा 0 इज गिवन एज 1 बाय रूट ऑफ LC। एंड याद है हमने x का भी इक्वेशन निकाला था, तो इसी तरह q का भी इक्वेशन निकालेंगे। द सोल्यूशन, द इक्वेशन फॉर चार्ज इज, मैं इसको उड़ा रहा हूं, दिस इज प्रीटी नॉर्मल स्टफ। ओके, आई एम गोइंग टू टेक दिस ऑफ। The equation for charge Q, अच्छा blue, in blue, Q is QM cos omega 0 t plus phi, which was your standard, you remember, y is equal to a cos omega 0 t plus phi, इसी तरह का इक्वेशन आता था। This is equation number 4। and अब इसको मैं डिफरेंट, अच्छा at time t equal to 0 चार्ज कितना होता है? मैक्सिमम, है ना, चार्ज मैक्सिमम होता है t इक्वल टू 0। तो q की जगह qm डालू, t की जगह 0 डालू, तो मुझे मिलता है
cos phi is 1 and किसका cos 1 होता है 0. So equation 4 becomes, क्या बन जाता है इक्वेशन नंबर 4? Q is QM cos ओमेगा 0t एंड इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे करंट मिलेगा. ऑल्सो करंट क्या था? I is minus dq by dt which is minus d by dt of qm cos omega 0t. तो qm तो बाहर निकल दिया, d by dt of cos is माइनस साइन, माइनस माइनस कट जाएंगे. सो I is qm ओमेगा 0 साइन एंड qm ओमेगा 0 को हम im भी लिख सकते हैं. सो I is im sin omega 0t. So these are the equations for charge and current. Can you see charge depends on cos, I current depends on sin. तो जब चार्ज मैक्सिमम करंट 0, जब करंट मैक्सिमम चार्ज 0, तो चार्ज करंट दोनों एक दूसरे के साथ आंख मिचोली खेलते हैं और इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में ये एनर्जी घूमती रहती है. As a last part to this topic, let me be very frank in telling you this is the ideal situation. ये तभी पॉसिबल है जब पूरे सर्किट में रेजिस्टेंस ना हो, पर वो आइडियल सिचुएशन होता है जब रेजिस्टेंस नहीं होती. हर सर्किट में थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस तो होता ही है, और जब भी थोड़ा बहुत, यू वांट टू हैव अ लुक, यू हैव अ लुक. जब भी सर्किट में थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होता है तो वो करंट और एनर्जी को घटा देने का काम करता है. सो मैं इसको नोट में डालूंगा. आई पुट दिस इन अ नोट. सो नोट में नंबर 1, वी हैव अज्यूम्ड, आइडियली वी हैव अज्यूम्ड दैट रेजिस्टेंस in the circuit is 0. But if resistance is not 0, then energy will keep decreasing and eventually oscillations will die out. Will keep decreasing and oscillations will soon, damped oscillations होते ना, oscillations will die out. तो ये तुम्हारा पहला फंडा. और दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण फंडा, तुम ये सोच रहे हो एनर्जी हमेशा कैपेसिटर इंडक्टर, इंडक्टर से कैपेसिटर घूमती रहती है, पर ऐसा नहीं होता. याद रखें, यू नो, जैसे फॉर एग्जांपल ये कैपेसिटर है और ये इंडक्टर है. अगर कैपेसिटर में 10 जूल एनर्जी स्टोर हुई है ना, तो जब यहां से करंट इसमें जाएगा और सारी एनर्जी स्टोर होगी, पूरी 10 जूल नहीं होगी, 9.9 जूल स्टोर होगी. तो क्वेश्चन ये है, भाई बीच में से 0.1 जूल कौन खा गया? भाई कोई खा नहीं गया है. 0.1 जूल हैज बीन गिवन आउट in the form of electromagnetic radiation. So this is my most important pointer actually. यही बात करने के लिए पूरा टॉपिक करना पड़ा. When energy goes from C to L or anyway C to L or vice versa, some amount of energy is given out, is lost in the form of electromagnetic radiation. My God. And thus we say an LC circuit gives out electromagnetic radiation. LC circuit is the producer of electromagnetic radiation. तुम्हारे टीवी में, रेडियो में, सब में LC सर्किट होती है. हमने बात रेजोनेंस वाले में भी करी थी. Thus an LC circuit is used to produce. Thus an LC circuit can be used
to produce electromagnetic radiation. My God, इस स्टेटमेंट को लिखने के लिए 3 बोर्ड करने पड़े तब जाके ये स्टेटमेंट आया लिख के. सो हमेशा याद रखना, अगर तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बनाना चाहते हो तो यू हैव टू हैव एन LC सर्किट इन योर अरेंजमेंट. Okay, so this was the idea about LC circuit. I am looking at illustration 11 right here, right now. I hope you are looking at it. Illustration 11 में बात एकदम सीधी है. Show that the free oscillations of an LC circuit, the sum of energy stored in the capacitor and inductor is constant. Okay, in order to do that, I will need you to remember the equations for charge and current जो अभी हमने derive किया था. Let's go. Illustration 11 please. Illustration 7.11. To prove that UE, that is energy stored in capacitor, plus UB, that is energy stored in an inductor, is actually constant. Okay, let's start the proof. First things first, पहले equations देख लेते हैं. The equations for charge and current दोनों की जरूरत पड़ेगी. अभी थोड़ी देर पहले निकाला था इसलिए दिक्कत नहीं है. Q is equal to QM cos omega 0t and I is IM sin omega 0t. भाई IM तो आपको याद है ना, QM omega 0 याद दिला देना अच्छा होता. अच्छा, ये दोनों इक्वेशंस का यूज करने वाला हूं. एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर UE, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज Q स्क्वायर बाई 2C. Q की जगह इसको डाल दूंगा, सो QM स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा 0t बाई 2C. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1. एंड एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, भाई एनर्जी इन इंडक्टर का इक्वेशन किसी के पास है तो बताओ यार, आप ऐसा अपने पास मत रखो. माय गॉड. एंड आई की जगह ये रहा QM ओमेगा 0 साइन ओमेगा t. तो आओ राजा, सीधा ही डाल दो QM स्क्वायर ओमेगा 0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा 0t. अच्छा, नाउ hey, do you know omega 0 square? Isn't it 1 by LC? Omega 0 square is 1 by LC. तो इसकी जगह 1 by LC लगा दो. Put this into, तो मेरा UB क्या हो जाएगा? UB हाफ L QM स्क्वायर और ओमेगा 0 स्क्वायर की जगह 1 by LC साइन स्क्वायर ओमेगा 0t. भाई LL कटा तो क्या बचा? UB QM square by 2C. My God, can you see this? Are you looking? ये UB और ये UE ऐड कर दे, ऐड 1 and 3. तो U is UE plus UB. UE is QM square by 2C cos square omega 0t. UB is QM square by 2C sin square omega 0t. Can you see QM square by 2C common in both? तो QM square by 2C ब्रैकेट में cos square omega 0t plus sin square omega 0t. I have yet to meet a person who does not know that cos square plus sin square is 1. If you find out someone who doesn't know, मेरे पास ले आओ. तो U is QM square by 2C. QM be constant, 2C be constant. So U, the total energy, is constant. Can you see? Alright. So this was illustration 7.11. आगे बढ़ जाते हैं. कौन सा नंबर करने वाला हूं बता ही रहा हूं मैं आपको. मैं करने जा रहा हूं न्यूमेरिकल 7.8. I am looking at numerical 7.8. Later I am going to look at numerical 7.15
and then we are looking at 7.18. Are we looking at 7.18? Yeah, we are looking at 7.18. No, sorry, we are looking at 7.20. 18 is doable. 7.20 and then we are looking at 24. अच्छा, first things first, let's look at 7.8. उसके लिए I need the board, so I will take the board. Numerical 7.8. You might as well look into your textbooks now. अच्छा, what does numerical 7.8 say? 7.8 ये कहता है कि suppose the initial charge on the capacitor in example 7.7 is 6 millicoulomb. So charge is 6 millicoulomb. What is the total energy stored in the circuit and initially, and what is the total energy at a later time? At a later time बाकियों की एनर्जी क्या होगी? ओके, सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यू नो कैपेसिटर यू कैन सी इज फुली चार्ज, तो ये एक्चुअली उसका QM है. सो एनर्जी ऑन द कैपेसिटर, एनर्जी ऑन द इन द कैपेसिटर UE is QM square by 2C. अरे पर C कितना है वो तो देखो, 7.7 का न्यूमेरिकल में C कितना है? 30 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर. सो कैपेसिटर इज 30 माइक्रोफैरेड. आई फॉरगॉट टू राइट. तो Q की जगह 6 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर ओवर 2 इंटू 30 इंटू 10⁻⁻6. सो 6 का स्क्वायर 36 and this is 10⁻⁻6 and 3 2s are 60 into 10⁻⁻6. Okay, boom boom. So UE 36 by 60, 0.6 joule. बराबर. So initial energy is 0.6 joule and later this energy goes into inductor and comes back, but it remains same. So the total energy in the circuit remains same. वो 0.6 जूल ही रहता है, फिर वो चाहे डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो कैपेसिटर इंडक्टर के बीच में, या फिर वो इंडक्टर में टोटली चला गया हो, या वट एवर बी द केस, बट एनर्जी डज नॉट चेंज, इट रिमेन्स 0.6 जूल. आइडियल केस सिनारियो है ये. ऑलराइट, सो दिस वाज न्यूमेरिकल नंबर 7.8 एंड नाउ वी आर लुकिंग एट नंबर 7 point whatever, 7 point whatever नहीं है, या मैं क्या हूं? ओके, 7.15 शुरू कर रहे हैं बाबूजी. डेटा लिख लेते हैं बेटा. क्या कहता है 7.15? 100 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर है. 100 माइक्रोफैरेड is connected in series with a 40 ohm resistance. So 40 ohm resistance and 110 volt 60 hertz. So VRMS 110 volt, no is 60 hertz. ये अमेरिका का सप्लाई है, अमेरिका का प्रॉब्लम है ये, मतलब प्रॉब्लम मतलब सम. व्हाट इज द मैक्सिमम करंट इन द सर्किट? IM चाहिए. व्हाट इज द टाइम लैग? ये पहली बार आया इसलिए मैंने टाइम लैग वाला लिया था. ओके, बिटवीन द करंट मैक्स एंड द वोल्टेज मैक्स. ओके, नाउ सबसे पहले कुछ भी करने से पहले अपने को पहले XC फाइंड करना पड़ेगा. सो कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC is 1 by omega C is 1 by 2 pi nu C. I hope somebody is calculating for me. 2 into 3.14 into 60, 50 नहीं है इस बार, 60 है, into 100 into 10⁻⁻6, that's 10⁻⁻4. तो 10⁻⁴ को ऊपर ले जाऊं मैं
over 62 is 120. 120 into 3.14, आई थिंक 370 या 380 होता होगा, पता नहीं. फाइंड आउट कितना हो रहा है ये एक्सी. 26.54. Okay, is this agreeable? Everybody is finding out the same idea. Yes, sir. Okay, so impedance. Yeah, somebody saying something. Impedance Z is root of R square plus XC square. XL तो है ही नहीं, तो बात ही नहीं है उसकी. R 40 का स्क्वायर 1600 प्लस 26.54 का स्क्वायर. समबडी स्क्वायर इट अप, एडिड विद 1600 और रूट मारो, उसका कितना मिल रहा है आंसर? Sir, 48.48. ओके, एंड अब मुझे IM चाहिए. मेरा फर्स्ट पार्ट आ रहा है IM. भाई आज सिंपल एज द इक्वेशन लुक्स IM. अरे चेतन भाई, मेरे को वो शीट ला के दो ना, tan साइन की और कैलजी भी देना. एंड IM इज VM बाय Z, पर हमारे पास VM तो है ही नहीं, बट VRMS तो है महाराज. VRMS इंटू √2. भाई यादें आती है कि नहीं आपको इसकी इक्वेशन वगैरह? सो 110 इंटू 1.414 बाय 48. Inform me the moment you have an answer. 3.24 is good enough. I'm sure somebody's checking in the backyard. अपने को टाइम के लिए पहले फेज एंगल फाइंड करना मांगता है, तो फेज एंगल पहले फाइंड किया जाए. मैं बी में पहले फेज एंगल फाइंड करूंगा. फेज एंगल tan phi इज XC बाय R. एक्सएल तो है ही नहीं, तो अकेला XC बाय R. XC इज 26.54 डिवाइड बाय 40. हाउ मच डज दिस बिकम? 0.6635. and I would appreciate someone finding me tan inverse of 0.6635. मुझे मिल गया 33 डिग्री एंड 19 प्लस कितना ऐड होना चाहिए? 16, तो 17 चल जाएगा. वी आर ट्राइंग टू बी वेरी प्रिसाइज. 33 डिग्री 34 मिनट करीबन, बराबर ना? 33 डिग्री 34 मिनट, पर वो 4 मिनट को छोड़ दो. 33.5 डिग्री विल सर्व अस जस्ट फाइन. सो phi is 33.5 डिग्री. इट विल वर्क आउट. अब ये एंगल है, इसको टाइम के साथ कैसे इक्वेट करते हैं ध्यान से देखिए. नाउ जब भी आपको टाइम फाइंड करने को बोले कोई, phi is actually angle which is omega t and omega is 2 pi nu into t. भाई phi को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, नहीं तो उसके बगैर नहीं चलेगा. सो 33.5 डिग्री इंटू, हाउ डू यू कन्वर्ट डिग्री इंटू रेडियन? पाई बाय 180. वाओ, पाई गोज अवे. सो t जगह की एकदम जबरदस्त तंगी आ चुकी है. 33.5 डिवाइड बाय 2 इंटू नू कितना? 60 इंटू 180. भाई आई वुड अप्रिशिएट somebody giving me this answer. 2 into 60 is 120. 120 into 180, and this is 33.5. 1.5 into 10 raised to minus 3. You sure about that, Pretty? Zero point 00155. 0.00155 second. That would be 1.55 into 10 raised to minus 3 second. Is this agreeable? Yes, sir. 1.5. Yup, what? ये इतना नीचे दिखाई दे रहा है ना? Yes, sir. ओके, सो 1.5 इंटू 10 raised to minus 3 सेकेंड. ये आइडिया याद रखिएगा. टाइम लैग या जो भी टाइम है वो फाइंड करने के लिए यू विल हैव टू फर्स्ट फाइंड phi, और फिर phi को ओमेगा टी के साथ आपको इक्वेट करना पड़ेगा. ऑलराइट, सो दिस वाज 15. आई थिंक वी विल डू 20 राइट नाउ.
Didn't I say 20? Yes, I said 20. So we are looking at 20, but we will be able to look at it only if we make space for the new. So 7.20 is on the roll now. It's rolling. It is absolutely rolling. So what does it say? It says, let me write what it says. Simon Says. We used to play a game called Simon Says. Have you ever played that game, Simon Says? L is 0.12 Henry. Okay, don't get hassled. C, 480 nanofarad. Okay. Resistance is 23 ohm. And it's connected to a 230 volt variable supply. So VRMS is 230 volt. Okay, they want some things. What do they want? First, what is the source frequency for which current amplitude is maximum? भाई नू जीरो मांगा है तुमसे, नू जीरो, क्योंकि करंट मैक्सिमम किस पे होता है? ओमेगा जीरो पे ना. ओमेगा जीरो मतलब नू जीरो. ऑब्टेन दिस मैक्सिमम वैल्यू. अच्छा, करंट की भी IM फाइंड करना है. ओके. बी, what is the source frequency for which average power by the circuit is maximum? By, if current is maximum, isn't the power also maximum? So the frequency will be same. No zero. Do they have to find? Do they want us to find power? Yeah, मुझे पता ही था. ये सारा धंधा हमसे ही करवाएंगे. Okay. C, for which frequencies of the source is the power transferred to the circuit? Half power. ओमेगा 1 और ओमेगा 2. मतलब नू 1 और नू 2 चाहिए उनको. वही ओमेगा 1 ओमेगा 2 वाला. What is the current amplitude at this frequencies? मतलब IM max by root 2 चाहिए उनको. ओके. एंड व्हाट इज द Q फैक्टर? ओके डोकी. ऑलराइट, इतने सारे कारवां को लेकर हम आगे बढ़े और सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले. ओके, लेट अस स्टार्ट. ओके, सबसे पहले कुछ भी करंट से पहले इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटी. अरे नू जीरो फाइंड करना ना भाई. नू जीरो, सोर्स फ्रीक्वेंसी फॉर रेजोनेंस. नू जीरो is 1 by 2 pi root of LC. I guess, I don't guess, it is just a word, just a phrase. LLL 0.12. C 480 और nano वाला ये. Oh shit man, I hate nanos. Not the car of course, eh? अच्छा, मैं यहां से एक जीरो काट के 10⁻⁸ कर देता हूं. 10⁻⁸ में से 10⁻⁴ बाहर ले लेता हूं. 48 into 0.12. How much is 48 into 0.12? 5.76. रूट मार देता. ओके, हाँ 5.76 का 2.4. अब ये 10⁻⁻. कौन सा, किसका आंसर? यू गॉन नट्स. तूने 10,000 के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया. बोल हाँ. देखा, मुझे पता ही था. 276.5. 276.5 चेक. किसका फाइनल आंसर? हाँ सर, 663. हाँ सर, 663.5. एक सेकेंड देखने दो. 663.5. यस, सही है. 663.5. नू जीरो 663.5 हर्ट्ज. दैट इज माई नू जीरो. अब IM के लिए IM एट रेजोनेंस. सर जी महाराज, एट रेजोनेंस XC माइनस XL तो जीरो हो जाता है. अच्छा, तो इंपीडेंस Z कितना हो जाता है? R. सो मैक्स करंट बाई IM मैक्स, isn't it VM by R या VM by Z, which is VM by R. सर VM नहीं है, हम वो जानत है, तो इसको VRMS इंटू रूट 2 कर दें
और जरा भी लाइफ में लोड ना ले। 230 इंटू 1.414 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस 23 है। 230 by 23 is 10. 10 into 1.414 14.14. Thank you so much, buddy. You all have been so much help. 14.14 एम्पियर। ओके, હવે બીજામાં પહેલું તો આવી ગયું। બીજામાં P max ભાઈ, power is max when nu zero is same 663.5 hertz, same old idea, and P max और रेजोनेंस है, यू नो पावर इज Vm या Vrms IRms cos phi, बट रेजोनेंस पे cos phi is 1, so Vrms IRms। भाई सर वी डोंट हैव नो IRms। ओके, डू यू हैव I is V by Z? Yes sir, we have Vrms by Z। okay, I am taking this off now, we will have to rely on our memory। हमें nu 1 nu 2 है, क्यों फाइट कर रहा है, तो इसको सबको उड़ा देंगे, राम राम कर देंगे सबको। कि जगह की तंगी, क्या करेंगे यार, कुछ तो करना पड़ेगा। तो P max Vrms कितना था 230 एंड पर मैक्सिमम पावर वो IM स्क्वायर में आ जाएगा ना, IM मैक्स स्क्वायर भाई यार सस्ते में पत्र है, तुम भी है ना कमांड करते हो राजा। पावर मैक्स is IM max the whole square by 2 into R। क्यों किसी का दिल दुखाएं। 14.14 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू रेजिस्टेंस कितना 230 ना, नहीं 23। चल बेटा 14.14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। 200 by 2, 200 by 2 is 100, 100 into 23, 230 watt is the answer। 230 watt है ना। अरे यार क्या तुम कैलकुलेशन की बजा रहे हो। 230 वाट। अब फिर सी nu 1 और nu 2 हाफ पावर बैंडविड्थ वाला, सॉरी हाँ 230 नहीं 2300, हाँ 100 इंटू 23, ओके 2300। nu 1 nu 2, सबसे पहले हाफ पावर बैंडविड्थ आपको याद हो अगर, ट्वाइस डेल्टा ओमेगा इज कितना R by L, तो हाउ मच इज डेल्टा ओमेगा R by 2L। तो जरा बच्चों बताओ R कितना है 23, L कितना है 0.12, सो 23 by 0.24, एनीवन करीबन सॉरी एक सेकेंड, L 0.12 ही था ना इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, L 0.12 ही, हाँ कितना आ रहा है आंसर 95। यार कुछ गड़बड़ हो रही है मेरे को ऐसा लग रहा है, क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, R कितना है 23, ओके बराबर है 90 कितना 95.3 hertz। So nu 1 is nu 0 plus delta omega, so 663.5 plus 95.83। I think something is wrong somewhere, seriously something is wrong। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, कितना आ रहा है ये 663.5 प्लस, तो इज दैट योर आंसर। आप पीछे देख रहे हैं, पीछे देख रहे हैं आप लोग, डेल्टा नू, अच्छा ये डेल्टा ओमेगा है ना अब तक, सो हमको इसको नीचे से 2 पाई से डिवाइड करना पड़ेगा। यस 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 95.83 रेडियन पर सेकेंड है ये, सो ये डेल्टा ओमेगा ही है रेडियन पर सेकेंड,
देयरफॉर डेल्टा नू इज डेल्टा ओमेगा बाई 2 पाई। भाई नू में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। सो 95.83 डिवाइड बाई 6.28, हाउ मच? 15.2 hertz. And thus now nu1 is nu0 plus delta nu, which is 663.5 plus 15.2. 663 plus 15, 678.7. And nu2 is nu0 minus delta nu, which is 663.5 minus 15.2. So 663 minus 15 is 648, isn't it? 648.3 करीबन। उनको कहाँ फर्क पड़ता है, फर्क अपने को पड़ता है सारा। एंड क्यू फैक्टर, फाइनली क्यू फैक्टर आप जिस भी तरह करना चाहो, फाइनली नंबर डी क्यू फैक्टर आप चाहो तो 1/r रूट L/c से भी कर सकते हो, या ओमेगा 0 बाई ट्वाइस डेल्टा ओमेगा से भी कर सकते हो। भाई ओमेगा 0 कितना मिला था अपने को? ओमेगा 0 स्क्वायर, ओमेगा 0 वाज 1 बाय, इससे अच्छा छोड़ना, अपने को ओमेगा 0 करना ही पड़ेगा फाइंड। इससे अच्छा 1/r रूट ऑफ L/c ही करे, एक ही इक्वेशन में सारा निपट जाएगा। L कितना 0.12 एंड C कितना 480 नैनो ना, तो 48 इंटू 10⁻⁻8। 10⁻⁻8 रूट में से बाहर निकला, 10⁻⁴ हुआ, 10⁻⁴ बन के ऊपर चढ़ा तो 10⁻4 हुआ। एंड व्हाट इज रूट ऑफ 0.12 डिवाइड बाय 48? पॉइंट, अच्छा वो ऊपर ना, रूट में से बाहर निकाल दिया। ओके चलो फिर 10,000 इंटू 0.05 आई थिंक विल बी 500 by 23, 21.7 करीबन। देखो तो पीछे क्या आंसर दिया, करीबन 22 बोला है या 21 पॉइंट समथिंग बोला? 21.7। अच्छा 4 छोड़ दिया उन्होंने, अच्छा किया। ऑलराइट, तो सारे आंसर आ चुके हैं, देख लीजिए एक बार। एंड हम अब करने जाएंगे, कौन सा नंबर बोला था? 24, यस 24। ओके 24 में स्टैंडर्ड 11 की कुछ यादें ताजा हो जाएंगी, जब देखना तो एक बार देख लो ये नंबर 24। ओके सो अरे 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 डस्टर सारा एकदम गंदा हो जाता है, और उससे बोर्ड भी गंदा हो जाता है। इसको यूज किया जाए, कहाँ गया हमारा कपड़ा, कहाँ गया? ये कपड़ा अच्छा रहता है। वाइट हो तो टाइड हो, हैं? ओके 24 बोलता है, क्या बोलता है? लेट अस चेक। वो कभी कुछ बोलता नहीं, अपने को इसको बुलवाना पड़ता है। क्या कह रहा है 24? एट अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट वाटर प्रेशर हेड इज एट अ हाइट of 300 मीटर एंड वाटर फ्लो अवेलेबल, मतलब ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम 10⁻³ मीटर, नहीं 100 है, 100 है ना, 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, इफ द टर्बाइन जनरेटर एफिशिएंसी N is 60%, मतलब 60/100 मतलब 0.6। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल पावर अवेलेबल? G को 10 लेना है। ओके फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, what is the mechanical power due to the due to the dam? So mechanical
power, we'll call it PM. I'm sure you know it is force into velocity. And force is what? Isn't it pressure into area into velocity? And pressure is H rho G. Hey, area into velocity, isn't it volume? Okay, volume per time, rather. So H कितना है? 300. Density of water 10⁻3. G को भी 10 and V कितना है? 100. बहुत सारे जीरो आ गए. 2 3 5 6 7 8. तो 3 into 10⁸ वॉट मैकेनिकल पावर हमको पानी से मिल रहा है. एंड एफिशिएंसी 0.6 है, मतलब इसमें से मात्र 60% इलेक्ट्रिकल पावर कन्वर्ट होगा. सो इलेक्ट्रिकल पावर इज पी, जो पीएम है उसका 60%, मतलब 0.6. तो 3 into 10⁸ into 0.6, 3 6 18, 1.8 into 10⁸ what? I would love somebody to check. Is this the right answer? Is it 1. अरे बेटा, तो ये 180 into 10⁶ वॉट हुआ ना. तो इलेक्ट्रिकल पावर इज 180 मेगावाट. एंड आई थिंक तेरे को 176 तभी मिलेगा जब तू जी को 9.8 लेगा. ले कमबख्तों, 9.8 तो सारा कोई बोल नहीं रहा है 9.8 लिया जाए, नहीं तो हम वहीं ले लेते. 3 4 5 6 7, ये 7. एंड हाउ मच इज 3 into 9.8? 20 कितना? 3 4 5 6 7. So 29.4. No big deal. 1.76. So 1.76, 176. Enjoyable है? ओके. आंसर आ चुके हैं. ओके, देख लो इसको. ओके, मैं 7.25 देख रहा हूं. मैंने छोटा सा एक स्कीमेटिक बना भी लिया उसके लिए. अ स्मॉल टाउन विथ अ पावर डिमांड ऑफ 800 किलोवाट. तो इधर पावर की डिमांड कितनी है? 800 किलोवाट. एट 220 वोल्ट, वोल्टेज 220 वोल्ट पे चाहिए इनको. इज सिचुएटेड 15 किलोमीटर अवे. ये 15 किलोमीटर अवे है फ्रॉम अ पावर प्लांट. समथिंग किधर गया? हाँ. और ये जो है वो 440 वोल्ट पे पावर बना रहा है. ओके. द रेजिस्टेंस ऑफ द 2 वायर लाइन इज 0.5 ओम पर किलोमीटर. सो रेजिस्टेंस ऑफ लाइन is 0.5 ohm per kilometer. Okay, the town gets its power from a 4000 to 220 volt step down transformer. ये transformer is 4000 volt to 220 volt. Okay, at a substation in the town. Okay, estimate the line power loss in the form of heat. Okay. B, how much power must the plant supply? Power from plant, P plant supply, assuming there is negligible power loss due to leakage, and step up transformer at the plant. अच्छा, ओके, पहले मैं आपको समझा दूं ये कहना क्या चाह रहा है. ये बुक पकड़ के पुंगी बच जाती है. सबसे पहला ये आइडिया इस बात को बताने की कोशिश कर रहा है, इस बात को प्रूफ करने की कोशिश कर रहा है कि व्हाई शुडंट द पावर हाउस ट्रांसमिट एट लो वोल्टेज. अब ये लो वोल्टेज पे ट्रांसमिट करेगा, आप देखोगे हालत खराब हो जाएगी. ऑलराइट, क्योंकि इसका परिस्थिति ये देखो 4000 वोल्ट पे ट्रांसफर कर रहा है ये, और 4000 वोल्ट पे ट्रांसफर करने से कितना लॉस बैठ जाएगा वो देखना जरा. यही बात करनी है आपको सेकंड नंबर में 26 में, जिसमें अब 44,000 वोल्ट पे वो 40,000 वोल्ट पे ट्रांसफर करेगा और लॉसेस काफी कम होंगे. सबसे पहली बात,
ये 15 किलोमीटर की दो लाइन है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज 0.5 ओम पर किलोमीटर। तो मैं सबसे पहला काम करूंगा, लाइन मारूंगा। पहला, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द लाइंस। डू यू अग्री? दो लाइन है तो 2 इंटू कितना है पर किलोमीटर 0.5 ओम, एंड कितने किलोमीटर की लाइन है 15। सो 2 इंटू 0.5 इज 1 इंटू 15 इज 15 ओम, बराबर। अब कितना करंट होगा लाइंस में? करंट थ्रू द लाइंस, हम अज्यूम कर रहे हैं सब आरएमएस वोल्टेज है, करंट थ्रू द लाइन। डू यू अग्री 4000 वोल्ट पे आ रहा है ये, तो पावर जो है 4000 वोल्ट पे आए तो कितना उसको वो हो जाना चाहिए, कितना क्या बोलते हैं उसको, कितना पावर है? 800 किलोवाट। तो पावर अपॉन वोल्टेज, पावर कितना है 800 किलोवाट, किलो वो 10⁻³ अपॉन कितने वोल्टेज पे आ रहा है 4000, 4 इंटू 10⁻³ आओ जो भाई, ये तो सप्लाई करने का ये वोल्टेज इस पे, जो ये ट्रांसफॉर्मर है 4000 वोल्ट पे इनपुट ले रहा है, ये 4000 वोल्ट पे काम कर रहा है पूरा, और कितना पावर लाने का है 800, तो पावर ओवर वोल्टेज 800/4 कितना होता है 200 एम्प। सो माय फर्स्ट शॉट, पावर लॉस ए, पावर लॉस ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, P loss, I'm sure everybody knows it is I square R. So I square into R, I कितना है 200, ओ हो into R कितना है 15। So 200 का स्क्वायर इज 4 इंटू 4 जीरे, एंड 4 इंटू 15 इज 60। तो 60 इंटू 4 जीरे, 60 इंटू 4 जीरे मतलब 600 इंटू 3 जीरे, 600 इंटू 3 वॉट मतलब 600। कैन यू इमेजिन 600 किलोवाट तो लॉस हो जाएगा सर, ये लाइंस में 600 किलोवाट का लॉस है, और मुझे 800 किलोवाट तो टाउन को देना है, तो मेरे को यहां से कितना निकालना पड़ेगा? 800 प्लस 600 1400 निकालना पड़ेगा ना। डू यू अंडरस्टैंड? क्योंकि अगर मैं यहां से सिर्फ 800 निकालता हूं किलोवाट, इसमें से यहां तो 600 तो गया ही, तो इधर कितने बचेगा 200। बाकी के गांव वाले क्या करेंगे, शहर वाले 32 गुल मीटर चालू, ऐसा। तो अपने को ये इसको ये 800 भी देना है, ये 600 भी बर्दाश्त करना है, तो अपने को यहां पे कितना देना पड़ेगा 1400 किलोवाट बनाना पड़ेगा। तो मैं इसको उड़ा देता हूं 10 करके 10 गए सारे। सो पावर प्रोड्यूस्ड एट प्लांट is P plant is P loss plus power for town, मतलब 600 प्लस 800 which is 1400 किलोवाट। 1400 किलोवाट सर जी, 1400 किलोवाट का तुमको पावर निकालना पड़ेगा। तो अब तुमको बोला है कि कौन सा टाइप का ट्रांसफॉर्मर आपको यूज करना मांगता है यहाँ पे। ओके सी, तो कौन से टाइप का ट्रांसफॉर्मर यूज करना मांगता है आपको यहाँ पे, जो आपको 1400 किलोवाट पे चलाए 440 वोल्ट। भाई 440 वोल्ट का तुम्हारा ये फंडा है, तो किस तरह कौन से टाइप का ट्रांसफॉर्मर आपको यूज करना चाहिए जो इसको भी बर्दाश्त करे, उसको भी बर्दाश्त करे, सबको बर्दाश्त करे। हाँ एब्सोल्युटली, बट ऑफ कोर्स, पर कौन से टाइप का? अगर आप सिर्फ डायग्राम देखोगे तो आपको अंदाजा बैठेगा कि कौन से टाइप का ट्रांसफॉर्मर यूज होता है इस चीज में। आई होप यू आर लुकिंग। अगर आपको आंसर जानना है तो आपको इस लाइन के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है ये भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। अच्छा, करंट कितना हो रहा है, जा रहा है लाइंस में 200 एम्प, लाइंस का रेजिस्टेंस कितना है 15,
what will be the potential drop across the power line? पावर लाइन पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? 3000। यस सर। तो एज सिंपल एज इट गेट्स कि आप सो पीडी, फर्स्ट ऑफ ऑल पीडी अक्रॉस लाइन्स, V dash isn't it I into R? I कितना है? 200 into 15, that's 3000 वोल्ट। इसका 4000 तो है ही और 3000 इसका, टोटल कितना हो गया? 7000। सो वोल्टेज एट स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, अच्छा ऊपर लिख देता हूं, अब यहां बहुत नीचे हो गए। वोल्टेज एट स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर इज V डबल डैश इज, जो ये कितना था? 3000 प्लस यहां पे तो 4000 देना ही है, तो 3000 और 4000 कितने भये? सो आर ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप इज स्टेप अप। भाई इस ट्रांसफॉर्मर का इनपुट कितने पे आ रहा है? 440 और आउटपुट कितने पे देना पड़ेगा? 7000। सो 4000 वोल्ट टू ऐसे 440 लगे, 440 वोल्ट छूने से तेरे बराबर। अब यही करना है आपको यूजिंग 44,000 वाला फंडा जो 7.26 में दिया है। आई वुड वॉन्ट यू टू डू दैट एज होमवर्क, एंड यहां पे अपना चैप्टर 7 जो है सो खत्म होता है। आई होप यू अंडरस्टूड मैंने ये क्या किया। ईस्ट टाउन को इतना पावर चाहिए था, ये लाइंस में इतना लॉस था, तो पावर प्लांट को कितना प्रोड्यूस करना था? 1400 किलोवाट। दूसरी बात, अपने को ट्रांसफॉर्मर डिजाइन करना है। इस ट्रांसफॉर्मर का इनपुट 440 है, पर आउटपुट पे कितना होना चाहिए? ये 4000 तो है ही, प्लस जो पोटेंशियल डिफरेंस लाइंस में हुआ वो भी कैलकुलेट करना। तो 4000 प्लस 3000 जो हो गया 7000। सो इनपुट 440, output 7000 volt. This is going to be a step up transformer. All right. So with this, I end the story. Thank you so much. Have a lovely evening. Bye bye.